Good morning everyone. আজি হল থাৰ্সডে আমি যাব ওলাইছো বোমলা এফালে ৰেডি হৈ গল পাহি মাহত গলে বাৰু গাড়ী ৰখি আছে আহি পেলাই মোৰ বহুত বেছি দেৰি হৈ গল মানে আৰু মুন্নি উলুৱাই মানে মুন্নি হৈছে যাও একদম জায়গাত লগ পাম আজি আমাৰ গাড়ী চেঞ্জ হ'ব ইয়াৰ পৰাই বুক কৰি দিছে হোম ষ্টেৰ পৰাই এখন গাড়ী লৈ পেলাই আমি যাম বোমলা গতিকে বলক তাত লগ পাম छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी सफर अनजाना सा है रास्ता बेगाना सा है हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है सफर ভিউ এনজয় কৰি আমি আহি আছিলোঁ কিন্তু হঠাতে আমাৰ গাড়ীখন দেখিলোঁ যে ষ্টপ হৈ গ'ল আৰু আমাৰ ফ্ৰণ্টত যিবোৰ গাড়ী আছিল দেখিলোঁ যে চেইন লগাই আছে মানে আমাৰো গাড়ীত চেইন লগাব লাগিব ৰাস্তাত মানে বহুত বেছি বৰফ পৰিছে চেইন কি লগাবনে আমাৰ খানো চেইন লগাব এতিয়ালৈকে আগতখন নলগালেও হয় কিয় এতিয়াতো বৰ এনেকুৱা হোৱা নাই कुछ नया सा है हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है सफर अनजाना सा है रास्ता बेगाना सा है हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है हर मोड़ मोड़ पे कुछ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা এনেকৈ দিয়া আমি আহি পালোহি বোমলা পাছ যোনটোৰ হাইট হৈছে 15,200 ফিট যোনটো ইণ্ডিয়া চাইনা বৰ্ডাৰ হয় আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিসকলে এইটো কণ্ট্ৰল কৰি আছে এইখিনি মই ভিডিঅ' ক্লিপ বাহিৰত কৰিছিলোঁ ভিতৰলৈ যেতিয়া আমি গৈছিলোঁ তাতে মানে ভিডিঅ' বা ফটো আমি ক্লিক কৰা নাছিলোঁ এলাউ নাছিল একদম ফটোগ্ৰাফী ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হয় ৱেইটিং হল আৰু কেফে আছে য'ত চাহ পায় মেগী পায় ম'ম' পায় আৰু তাৰ পৰাই 50জন টুৰিষ্টক লৈ যায় এজন আৰ্মিয়ে গাইড কৰি আৰু সকলোখিনি কয় তাতে কি হৈছিল কি কথা মানে ডিটেইলছত গোটেইখিনি বুজাই দিয়ে আৰু কি ক'ম মানে চেলিউট টু ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ইমান কষ্ট কৰি ইমান ঠাণ্ডাত দেশখনৰ কাৰণে নিজৰ কাৰণে লগতে আমাৰ কাৰণে ৰক্ষা কৰি আছে দেশখন আৰু তেওঁলোকৰতো পৰিয়াল আছে তেওঁলোকৰো ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰো ৱাইফ আছে বাপেক আছে মাক আছে সকলোখিনি এৰি পেলাই দেশখনৰ কাৰণে যি ডিউটি কৰি আছে শব্দৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ কেতিয়াও ইভিনিং আমি আহিলোঁ লোকেল প্ৰগ্ৰেম চাবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ যিটো মনপা ট্ৰেডিশ্যনেল ডান্স সেইটো হ'ব লগতে য়াক ডান্স সেইবোৰ চাবলৈ আহিলোঁ টিকেট কটা হৈ আছিলে আৰু এয়া শ্ব' ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল অকণমান ভিডিঅ' ক্লিপ মই ৰাখিছোঁ সকলোৱে চাই লওক
पे कुछ नया सा है। নেক্সট আমি আহিলোঁ টাৱাং ৱাৰ মেমৰিয়েল চাবলৈ। ইয়াতে এটা লাইট এণ্ড চাউণ্ড শ্ব' হয়, এভৰি ইভিনিং হয় মানে, টিকেট কাটিব লাগে। আমি ইয়ালৈ চাবলৈ আহিছোঁ আৰু এই শ্ব'টোত ইণ্ডিয়ান আৰ্মিসকলে কেনেকৈ ফাইট কৰিছিল, 1962 যিটো ৱাৰ হৈছিল তাৰ বিষয়ে কয়, লগতে অৰুণাচলৰ যি হিষ্ট্ৰী কালচাৰ তাৰ বিষয়েও ভালকৈ ধুনীয়াকৈ দেখাই দিয়ে। ये हिंदुस्तान की सरजमीं का वो हिस्सा है जिसकी सूरज सबसे पहले कदम बोसी करता है। अरुण अर्थात सूरज की पहली सरगर्मी का अड्डा है ये, इसीलिए इसको अरुणाचल कहते हैं। अरुणाचल यानी सूर्य की पहली रोशनी से प्रकाशमान भूमि, प्राकृतिक सौंदर्य से आभूषित हमारे देश का गौरव, हमारे देश की पहचान। हिंदुस्तान की इस मनोहरी प्रांत की सुबह लोगों के मुख चिन्ह को अपनी सुनहरी किरणों से दीप्तमान कर आशा की नित्य नई कहानियां कह जाती हैं। यहां का ऊंचा उतंग पहाड़ बर्फ का शाही लबादा उड़े बादशाहों सा इतराया करता है। 60 के शुरुआती दशक में ये तलखी अपने परवान पर उस समय आ गई जब तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा अपने प्यारे वतन पर चीन के आधिपत्य को चुनौती देने की वजह से चीन की आंखों की किरकिरी बन गए और चीन के कहर से बचने के लिए उन्होंने भारत में पनाह मांगी। सदैव सत्य और न्याय का परस्तार रहा उदारमान भारत सत्य के खेमे में खड़े अपने शरणागत को कैसे निराश करता। भारत ने दलाई लामा को अपनी जमीन पर शरण दे दी। भारत ने वो किया जो न्यायोचित था, पर चीन ने भारत पर अमेरिका के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश रचने का आरोप मढ़ दिया। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील समझौते की शक्ल में चीन के साथ दर के रिश्ते की तुरपाई करना चाहिए। उसी नियत से उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी बुलंद किया। चीनी प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने नेहरू की इस पहल को एक सकारात्मक जवाब दिया, पर वो चीन का ऊपरी स्वांग भर था। अंदरूनी तौर पर चीन भारत पर हमला करने की गुपचुप तैयारी करता रहा और अंततः उसने भारत की पीठ पर खंजर उतार ही दिया। जी हाँ, सन 1962 में चीन ने भारत पर औचक्के से आक्रमण कर दिया। भारत शांति और अहिंसा की प्रतिमूर्ति, बुद्ध का भी देश था। शांति के पैरोकार भारत ने भरसक कोशिश की कि मैत्रीपूर्ण संवाद के जरिए चीन के साथ विवाद का कोई शांतिपूर्ण हल ढूंढा जाए, पर चीन ने जब प्यार का प्रत्युत्तर छल बल से देकर भारत पर युद्ध थोप दिया, तो फिर जगह भारतीय सेना की भुजाओं में बसा भारत का रुद्र। कि हिंदुस्तान वो मुल्क था जहां हक और हुकूक के लिए एक नन्ही चिड़िया भी बाज से लड़ने का बूता रखती थी। तुम किसी तरह
जरा थोड़ी देर और मोर्चा संभाले रखो, हम रीइंफोर्समेंट भेज रहे हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने दिलेर साथियों के साथ मिलकर उस दिन हिम्मत की एक बेमिसाल इबारत लिख दी। दुश्मनों से लड़ते लड़ते उनका गोला बारूद सब खत्म हो गया, बचा तो सिर्फ हार न मानने वाला हौसला। इसी हौसले के बलबूते वे अपनी प्यारी मातृभूमि के लिए मौत से निहत्थे हाथापाई करते रहे। जब तक एक भी भारतीय जवान के जिस्म में सांसें हुमकती रहीं, चीनी फौज उस मोर्चे पर एक कदम तक न रख पाई। ये शेर दिल अपने दुश्मनों का दिल दहलाकर जब निष्प्राण हो गए, तभी इस मोर्चे पर चीनी ध्वज लहरा पाया। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनके अदम्य शौर्य के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। उस भयावह रात 11,000 फीट की ऊंचाई पर अकेला महज एक लाइट गन के बूते चीनी फौज के कारवां को रोके रखा। ज्यादा सक्षम मीडियम मशीन गन से लैस चीनी फौज सैकड़ों की तादाद में इस वीर सिपाही पर ताबड़तोड़ वार करती रही। पर जब्बर हार वाला ये बांका उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देता रहा। इस बहादुर की बहादुरी और मातृभूमि के लिए अपार प्रेम देख स्थानीय बाशिंदे सेला और नूरी की रगों का लहू भी तेजाब सा उबलने लगा। वे भी अपनी जान की परवाह न कर उस समर कुंड में कूद पड़े। जसवंत सिंह अपनी बंदूक से एक एक कर दुश्मन को बेजान करता रहा, और जब जसवंत सिंह की गोलियां खत्म हो गईं, तो उसने निहत्थे ही चीनी फौज पर धावा बोल दिया। और दुश्मन की एक मशीन गन अपने कब्जे में लेकर उनके ही असले से उस उतंग पहाड़ पर उनकी कब्र खोद दी। जसवंत सिंह के अदम्य साहस के आगे दुश्मन टिक न सके और 300 चीनी सैनिकों की लाश के रूप में अपनी पराजय का साक्ष्य छोड़ वे भाग गए। अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के बाद बुरी तरह घायल जसवंत ने मृत्यु को इजाजत दी कि वो उसे अपने आगोश में ले ले। पराक्रम के इस विरले प्रदर्शन के लिए जसवंत सिंह को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकर जान हथेली पर कतरा कतरा कुर्बान तुझ पर। শ্ব'টো চাই আহি আমি ৰুম পালোহি। ইমান বেছি ঠাণ্ডা, হাত ভৰি একদম মানে আইচ। এতিয়া হিটাৰটো অন কৰি পেলাই অলপমান গৰম কৰি আছোঁ, আৰু এইফালে মুন্নিয়ে ধুনীয়াকৈ একাপ লাল চাহ বনাই আনিছে। আজিলৈ মোৰ লং ব্লগটো ইমানেই আছিলে। নেক্সট আৰু এটা লং ব্লগ দিম, অকণমান দেৰি হ'বও পাৰে, সকলোৱে চাব। দিয়ক আজিলৈ ইমানেই, বাই।